क्वेश्चन 10 आपके सामने है ये, और क्वेश्चन 10 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सो देयर आर two possible tangents obviously to this circle through origin, and find also their respective points of contact. So we are going for finding out these two tangents. Okay, तो यहाँ डायग्रामेटिकली भी अगर आप देखेंगे तो सर्कल पहले तो बना लेते हैं सर्कल कैसा है ये. ओके, ये आपके पास इक्वेशन है और इसके अंदर हमें पॉसिबली दो टेंजेंट्स निकालने हैं. अच्छा, और इसमें जो है whenever a line is passing through origin, so there is no y-intercept in the equation, so we will write it down. We know that the equation of line passing through origin, ठीक है, passing through origin जो होती है वो y is equal to x होती है. ठीक है, y is equal to mx होती है. In fact, y is equal to mx. Why? Because slope is not determined yet. Slope is the thing which we are going to determine. और with the help of that हम क्या करने वाले हैं, अब हम वही काम करेंगे जो हमने पहले देखा था कि हम एक कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, और कैसे बनाएंगे, इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये हमारी इक्वेशन 2 है. तो इक्वेशन 2 will implies, उसमें y is equal to mx हम रखने वाले हैं. So that is mx square minus 6x minus 2, y की जगह क्या आ जाएगा mx और plus 9. ठीक है, so with that what we are going to do, x square m square x square minus 6x minus 2mx और plus 9. ठीक है, so यहाँ से हमारे पास ये निकल आएगा. लीनियर टर्म में हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें साथ में इसके, तो that's going to give me 6 plus 2m और x कॉमन हो गया है plus 9. Now with this quadratic equation I can calculate the value of m simply by saying as line is touching the circle, as line is tangent to the circle or touching the circle, tangent to the circle. ठीक है, so that means discriminant b square minus 4ac 0 के बराबर रहेगा. ठीक है, और with that I'm going to substitute the values of b. b मेरे पास है minus 6 plus 2m इसका स्क्वायर minus 4a मेरे पास है 1 plus m स्क्वायर. ठीक है, एंड c मेरे पास है 9, ये 0 के बराबर है. ठीक है, with that I'm going to further work it out. इसको मैं a plus b whole square से खोल रहा हूँ, so that's going to give me 36 plus 24m और plus 4m square. Now this negative means 4 9 का 36 होता है, तो negative 36 and negative 36m square. ठीक है जी, तो with this हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा 36 और 36 माइनस 4m स्क्वायर से ये आपके पास आ जाएगा 32. 24m minus 32m square. From here you can take out common 8m and that's going to give you 8 3 the 24 minus 8 4 the 32. And obviously when the product of two things are equal to 0, then either the first one is 0, so either m is equal to 0, or the second one is 0. Second one is 3 minus 4m. That means m is equal to 3 upon 4. ठीक है, ये
ये दोनों वैल्यू ऑफ m आप कहाँ ले जाएंगे, इक्वेशन 1 2 में ले आके रख देंगे. 2 is in fact is what 2 is the equation of tangent. Therefore 2 implies when m is equal to 0, y is equal to 0 ही हो जाएगा, that is the equation of x-axis, and 2 implies when m is equal to 3 upon 4, the equation of line will be 3 upon 4x. That means going to be 3x minus 4y is equal to 0. These are the two equation of tangent जो उन्होंने पूछी थी. So यहाँ आप लिख देंगे which are the two equations of tangent on the given circle, which are the equation of tangents to the required circle. ठीक है, तो ये आपने उसको कैलकुलेट कर दिया. ठीक है जी. ये उसी सवाल की कंटिन्यूशन है. यू कैन सी कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन थी, ये सर्कल हमने प्लॉट कर दिया इसके अंदर. द नेक्स्ट थिंग इज द लाइंस वी हैव कंक्लूडेड. हमने जो दो लाइंस निकाली हुई है, ये y is equal to 0 और 3x minus 4y is equal to 0. We have said that these are the two tangents to the given circle. Given circle क्या है भाई, ये given circle है. तो first we are going for y is equal to 0 is obvious. Y is equal to 0 is this line. Okay. Second line is 3x minus 4y. So you can see 3x minus 4y is equal to 0. You can see the second line is tangent to the circle also. ये आपको नजर आ रही है. दूसरी लाइन है जिन्हें अगर यहाँ पे आप y is equal to 0 लिख भी देंगे तो वो x axis की, you can see the green one. Okay, this is the labeling of the graph. Green one is here. This is for the blue one. The red one is circle. You can see. So the answers we have calculated here for the tangents. ये हमें सवाल में उसने पूछे थे 7.2 के अंदर कि सर्कल जो गिवन था उसके दो आंसर हमें बताओ, तो हमने यहाँ निकाल दी. ये सर्कल की इक्वेशन थी जो कि ऊपर सवाल में दी हुई थी, कैन सी हियर. और इस सर्कल के ऊपर हमने उसे दो टेंजेंट निकाल के बताए एट द बॉटम पार्ट ऑफ आवर पेपर. y is equal to 0 and this thing, and you can see they are there, two of the tangents. ठीक है. Let's take a close look of that question. Question 13 is, you can see, prove that the product of the abscissa कहते हैं x को ना, prove that the product of abscissa of the points where the straight line this meets this circle this is equal to this. ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा का मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ऑब्वियसली उसके अंदर एक x होता है, तो x के जो दो आंसर होंगे वो कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आएगा. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू शो. क्वेश्चन नंबर है 13. तो लेट्स गो फॉर दैट. क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 के अंदर वी आर गोइंग फॉर द सर्कल फर्स्ट. एक्सरसाइज 7.2 है. सर्कल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है. और the line is y is equal to mx. Okay, y is equal to mx is the line. What we have to show, we have to show that this line touches this circle, and for that the product of abscissa is c upon 1 plus m square. ठीक है जी. Okay, so we are going for that. Substitute कर देंगे. Equation 1 implies equation 1 के अंदर we are going to substitute the value. ठीक है. And that is y is equal to mx. So 1 implies ये y is equal to mx को उठा के आप यहाँ रख लें. ठीक है जी. So इसके अंदर m की जगह आप रख देंगे mx स्क्वायर 2gx 2fy. y की जगह क्या आ जाएगा भाई, mx. ठीक है. और ये c. ठीक है जी.
Okay, now 1 plus m square x square and then plus 2gx और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 2f(m)x प्लस c, ठीक है। और उसके बाद नाउ इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्लियर कर लें। 2g plus 2f(m) and x plus c. Now that's your quadratic equation. Or with this quadratic equation, what you are going to calculate the product of abscissa, ठीक है। Okay, so what we have here, इसके अंदर हमारे पास from our previous knowledge product of roots क्या होता है, c upon a होता है, ठीक है। Here a is equal to 1 plus m square, b is equal to 2g plus 2fm और c is equal to c, ठीक है। So with that we know that product of abscissa c upon a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा c upon a है and with that c upon a what you can go for, हमारे पास जो c की वैल्यू है वो c ही है, ठीक है। और a की वैल्यू है 1 plus m square, ठीक है। so that is what they want you to show, product of abscissa, ठीक। so which is the required result, ठीक है। ये उसने आपको शो करने के लिए कहा था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 यू कैन सी व्हाट इज इन इट। क्वेश्चन 19 के अंदर आपके पास गिवन क्या चीज है, लिखा हुआ है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, और ये सर्कल गिवन है और इसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि whose point who is at the point whose ordinate is, यानी आपने उस पॉइंट पे, यानी ये लोकेशन की बात हो रही है इनफैक्ट, वो कह रहा है कैसे पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसपे कि ऑर्डिनेट जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। ऑर्डिनेट कहते हैं y को, ठीक। लेट्स गो फॉर दैट थिंग फर्स्ट। ओके, ओके सो ये अब हमें नहीं चाहिए तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 19, क्वेश्चन 19 एक्सरसाइज 7.2, सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब मुझे क्योंकि लोकेशन पूरी चाहिए, उसने से मुझे क्या दे दिया है, गिवन जो है वो ऑर्डिनेट दे दिया है, यानी y इज इक्वल टू 1। तो मैं इसकी मदद से इक्वेशन 1 की मदद से x निकाल लूंगा। 1 इम्प्लाइज अगर मैं 1 में y की जगह 1 रख दूं तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ जाएंगे प्लस माइनस 3। तो आई हैव टू डिफरेंट लोकेशन, देयरफॉर जो मेरी लोकेशन हैं वो क्या क्या हो गए हैं, वो हो जाएगा एक 3,1 जिसको सपोज मैं a का नाम दे दूं और एक हो जाएगी -3,1 इसको मैंने b का नाम दे दिया, ठीक है। तो आई हैव टू डिफरेंट लोकेशंस नाउ विद मी। और उसने मुझसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कहा है, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए मुझे लोकेशन मिल गई, मुझे स्लोप चाहिए होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। तो मैं पहले क्या करूंगा, इससे डेरिवेटिव निकाल लूंगा। इक्वेशन 1 से अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये आएगा 2x प्लस 2y वाई डैश और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से y डैश कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज गोइंग टू गिव मी माइनस x अपॉन y, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। और अगर ये डेरिवेटिव मैं कैलकुलेट कर लूंगा, इम्प्लाइज y डैश एट 3,1, so that will be x की वैल्यू 3 है और ये 1 है, so that will be -3, ठीक। और अगर मैं y डैश कैलकुलेट करूंगा द अदर पॉइंट एट b, so that will be y dash at -3,1 will be, ये खुद भी माइनस है, ये भी माइनस आएगा और y तो 1 है, that will be +3। so at these two different slopes I have to go for the equation। so I know from the theory कि वो क्या होता है, we know that
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखी जाती है, y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब नाउ एट, मैं पहले एक पॉइंट पे ले लेता हूँ, पहले ए पे ले लेता हूँ, मेरे पास दो पॉइंट है, एक है ए एक है बी, ठीक है। तो नाउ पहले मैं लिखता हूँ एट ए 3,1 क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मेरे पास आएगी y माइनस वन इज इक्वल टू 3x माइनस 1, 3,1 की बात हो रही है, ठीक है। इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, ये बनेगी 3x, ठीक है, माइनस y, और ये -1 उधर चला जाएगा, वो -3 है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये -3 इस तरफ है और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस, और ये हो जाएगा -2, ठीक है जी। ये एक आपके पास आ गया, और दूसरा क्या आएगा, एट, दूसरा अगर आप निकालेंगे एट बी -3,1, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस, ये स्लोप क्या है, ये स्लोप है 3। आई हैव टू चेक वन थिंग, जब मैं a पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो द स्लोप इज, I have to check one thing in there. Okay, टेंजेंट एट ए जो होगा, ये हमने क्रॉस कर दिया कि टेंजेंट एट ए जो होगा वो स्लोप -3 गिवन था, तो ये इस इक्वेशन के साथ m x माइनस x1 y माइनस वन, ये मैंने पॉइंट रखा, यहाँ पे स्लोप आएगा दैट इज -3 और x माइनस वन, ठीक है। तो दिस इज -3x प्लस 3, so what you end up with 3x plus y and -4, ठीक है। The second thing is कि at tangent at b, b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है -3, ये दूसरी लोकेशन है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा था, यहाँ पे स्लोप 3 आ रहा था, स्लोप यहाँ पे जो था वो 3 था, ठीक है। दोनों जगह पे स्लोप अलग अलग है, सो दिस विल बी 3 एंड x माइनस से हो जाएगा x प्लस, इसको ठीक कर लें, ये जो है पॉइंट यहाँ पे था, ये 3 था, ये 3 हमने यहाँ रखा है, तो x माइनस 3 का मतलब ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन दैट्स गोइंग टू बी 3x, ठीक है जी, और देन प्लस y एंड देन -11। दूसरे के लिए हमने पॉइंट ये लिया है, और इसके अंदर ये स्लोप आएगी 3 यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉइंट है x माइनस, यहाँ पे माइनस खुद भी है और एक माइनस ये भी है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव 3x प्लस 9, जबकि इधर है y माइनस वन, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू हैव 3x, ये y इधर ले आए तो -y, और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या कर देगा उसे +10। So these are the two equation of tangent at two different equation, ठीक है, which are the equation of tangent, उसने पूछी थी, ठीक है जी। ये दो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपके पास हैं, वो आ गई, ठीक, ये है, इसको करेक्ट किया है, ठीक है। और इसमें करेक्शन क्या है कि ये यहाँ पे ये 10 है, माइनस है नॉट, ठीक है। ये हमने इसको लिखा है 3x प्लस वाई माइनस 10, और ये है जो नॉर्मली 3 है 3x माइनस वाई प्लस 10, और इन दोनों को फिर हमने यहाँ पे प्लॉटिंग में भी देख लिया, ये सर्कल था हमारे पास, ठीक है, और ये इक्वेशंस हैं दोनों जो इसको टेंजेंट के दो पॉइंट पे टच करें, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही